Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah Almighty, who is the most beneficent, the most merciful. My name is Zainab Bibi from BS Botany, the Department of Life Sciences. My presentation topic is RNA and protein synthesis. First of all, I would like to explain the topic RNA. RNA means ribonucleic acid. RNA molecules are single stranded structure. तो जो डिफरेंस होता है आरएनए और डीएनए का कि आरएनए कंटेन्स शुगर राइबोस वाइल डीएनए कंटेन्स शुगर डीऑक्सीराइबोस। आरएनए के अंदर राइबोस होता है और डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस होता है। आरएनए कंटेन न्यूक्लियो बेस यूरेसिल वाइल डीएनए कंटेन थायमाइन। आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है और डीएनए के अंदर थायमाइन होता है। आरएनए यूज करता है एडेनाइन को, यूरेसिल को और साइटोसाइन एंड देन गुआनाइन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर, आरएनए का स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। जो बॉडी होती है इसकी शुगर फॉस्फेट बैकबोन से बनी होती है। देन नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं विच आर 4। फर्स्ट ऑफ ऑल ए जो रिप्रेजेंट करता है विच इज एडेनाइन, देन यूरेसिल रिप्रेजेंट यू, G with guanine and then C with cytosine. My next topic is protein synthesis. First of all, definition. It is the process in which cell make proteins. It occurs in 2 steps. First of all, transcription. The next one is translation. You should know about the central dogma, the process by which instructions in DNA are converted into functional product. अगर आप डायग्राम को देखते हैं तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए का स्ट्रक्चर बना हुआ है विच इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. With the help of transcription, it is converted into RNA, which is single strand RNA. Then, with the RNA can be converted into proteins with the help of translation process. The conversion of whole DNA into proteins, central dogma. ठीक है, तो जो फंक्शनल प्रोडक्ट है वो प्रोटीन्स होता है, बनते हैं. फंक्शन प्रोडक्ट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन सिंथेसिस के 2 स्टेप्स हैं. फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन था, तो उसको अगर हम डेफिनेशन वाइज देखते हैं तो क्या है. ट्रांसक्रिप्शन इज द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है इंफॉर्मेशन की फ्रॉम डीएनए टू आरएनए विच अकर व्हेन मैसेंजर आरएनए कॉपी ऑफ जीन इज प्रोड्यूस. ट्रांसफर होती है इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए. Then in the step of transcription you should know about what is promoter. Transcription is initiated when enzyme RNA polymerase bind to a particular binding site called a promoter. ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में एक एंजाइम यूज होता है जिसको हम आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं, जो बाइंडिंग के प्रोसेस में हेल्पफुल होता है. द नेक्स्ट वन इज जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है विच इज ट्रांसलेशन. Translation means transfer of information from RNA proteins. Information carried in messenger RNA used in the synthesis of polypeptide by ribosome. जो ट्रांसफर होता है इंफॉर्मेशन आरएनए से प्रोटीन तक उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं. नेक्स्ट वी स्टडी 3 टाइप्स ऑफ आरएनए. अगर हम टाइप्स देखें तो 3 स्टेप्स हैं, 3 टाइप्स हैं आरएनए की. फर्स्ट ऑफ ऑल rRNA, which is ribosomal RNA. The class of RNA found in ribosomal RNA. There are 2 other main types of RNA which are transfer RNA. The next one is messenger RNA. Then we see step by step. First of all, ribosomal RNA. First of all, it makes proteins. Ribosomal RNA make proteins. Here is the structure of ribosomal RNA. The next one is transfer RNA. It brings amino acid to the ribosome so it can build proteins. It has anticodon 3 nucleotide sequence complementary to the mRNA codon. Here is the structure of transfer RNA. The next one is messenger RNA. It message देता है, तो it carry coded instructions for synthesis for protein synthesis. Translation के प्रोसेस के अंदर फ्रॉम डीएनए इन द न्यूक्लियस टू द राइबोसोम. हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैसेंजर आरएनए.
नेक्स्ट वन इज ट्रांसक्रिप्शन। इसके अंदर 3 स्टेप्स हैं ट्रांसक्रिप्शन के। फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशिएशन, it is the beginning of transcription when enzyme RNA polymerase bind to the region called promoter। हमने पीछे भी पढ़ा कि इनिशिएशन के स्टेप के अंदर जब ट्रांसक्रिप्शन के अंदर एंजाइम यूज होता है RNA polymerase जो बाइंडिंग के अंदर हेल्प करता है उसको हम प्रोमोटर कहते हैं। Single DNA unwind to enzyme can read base in one of the DNA strand of mRNA। The next step is elongation। इसका मतलब होता है addition of nucleotide to mRNA strand। mRNA strand के अंदर एक न्यूक्लियोटाइड की एडिशन होना elongation कहलाता है। The next one is termination। It is the ending transcription। The mRNA strand completely and detached from DNA। This is the process of termination। Here is the structure of transcription. 3 steps. First of all, initiation, then elongation, then termination. Processes in mRNA contain 3 steps. Splicing, the next one is editing, and polydentation. First of all, splicing क्या होता है? रिमूव ऑफ इंट्रॉन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए से इंट्रॉन्स को रिमूव कर देना स्प्लाइसिंग कहलाता है। इंट्रॉन क्या होते हैं? ऐसे रीजन डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन्स। प्रोटीन के अंदर कोडिंग जो नहीं करवाते उनको इंट्रॉन कहते हैं। एक्सॉन रीजन कोड फॉर प्रोटीन्स, जो कोडिंग करवाते हैं उनको हम एक्सॉन्स कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज एडिटिंग, चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड इन एमआरएनए। न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंजेस होती हैं मैसेंजर आरएनए की, तो उसको एडिटिंग कहते हैं। देन पॉलीडेंटेट, एडिंग टेल टू मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के अंदर टेल को ऐड करना पॉलीडेंटेट कहलाता है। द नेक्स्ट वन इज ट्रांसलेशन। इसको हम पढ़ते हैं। इसके फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज द डेफिनेशन ट्रांसलेशन। द पाथवे ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। पाथवे जो प्रोवाइड करता है प्रोटीन सिंथेसिस करवाने के लिए इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। The language of the nucleotide sequence on the messenger RNA is translated into the language of amino acid sequence। न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को जो ट्रांसलेट करता है अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को, उसके अंदर उसको हम ट्रांसलेशन कहलाते हैं। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट करता है 5 प्राइम एंड को फिर 3 एंड प्राइम, producing a protein synthesis from its amino terminal and to carbonyl terminal। इसकी डायरेक्शन होती है ना 5 प्राइम से 3 प्राइम तक जो होती है वो इसकी डायरेक्शन होती है। The next, the last topic is the genetic code, codons, instructions for making a protein, a series of 3 nucleotides on messenger RNA। Each codon signifies start, stop, or amino acid। Thanks for watching this video.